राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सरायकेला दौरे पर, कई स्कूलों में छात्र छात्राओं से किया संवाद। जनता संवाद कार्यक्रम में भी हुए शामिल, परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। मुख्यमंत्री ने चतरा में करोड़ों रुपए की योजनाओं की दी सौगात, नियुक्ति पत्र और परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। कहा, हमारी सरकार हर परिस्थिति में लोगों की समस्याओं पर रखती है नजर। खूंटी में कैरियर काउंसलिंग सह स्किल सेल एनीमिया पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जागरूकता पर दिया बल, वर्चुअली देश भर के विशेषज्ञ भी जुड़े। और राज्य में लंबे इंतजार के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने संथाल के रास्ते दी दस्तक, गर्मी और लू से मिली राहत, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका और मिस्र की 5 दिनों की राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम अमेरिकी महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर श्री मोदी इस महीने की 21 और 23 तारीख तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। श्री क्वात्रा ने बताया कि श्री मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां वे बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। Program in the US is in New York, which starts on the morning of the 21st with celebration of the International Day of Yoga at the UN headquarters in the morning of the 21st. You would recall that United Nations General Assembly had adopted a resolution proclaiming June 21st as the International Day of Yoga. While in New York, Honorable Prime Minister will also meet a cross-section of prominent personalities and leaders. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर पर भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। Times Square in New York comes live because this is a special way of welcoming Prime Minister Narendra Modi. Well, the Indian American diaspora welcomes Prime Minister Narendra Modi, and they're calling it a Unity Day. Let's quickly get to talk to them and understand what makes it so damn special. Yes, what Modi ji is our heart. Modi ji has given us back the respect that was lacking. We were same before Modi ji came. Modi ji came, he told us, you are good, you are talented, intelligent, go for the sky. Go for the sky. Sky is the limit. Yes. Sky is, of course, sky is the limit. He is not only Indian Prime Minister, but he is a world leader. The whole world is looking at not only Modi ji, but at India for solution. That is called power of Modi. तो अब भारत दुनिया को योगा कराएगा। हाँ, जरूर. That's a historical. They passed a resolution in 2014. Okay. So that made that the whole worldwide what the importance of yoga. That's under the initiative of Modi ji. So this is under Vasudhaiva Kutumbakam. Everyone should feel good and health-wise and financially. Vasudhaiva Kutumbakam here again, the very big message that goes across. Yeah, I'm wearing an orange color. Okay, we must say that we have all the solidarity with Mr. Modi and Prime Minister Modi, our India. He is the first Prime Minister of India who has been to White House for the second time, addressing the state, gathering over there. It's a pride for India. It's a great honor for India. Unity Walk is the biggest message here from Times Square, and the final countdown for International Yoga Day, which will be led by Indian Prime Minister Narendra Modi. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कोल्हान के दौरे पर हैं। आज चाईबासा के राज्यपाल सीधे सरायकेला पहुंचे। चाईबासा से वो राज्यपाल सीधे सरायकेला पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले केवीपीएसडी राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय का मुआयना किया और उसके बाद वहां की छात्राओं से बातचीत की।
इसके बाद राज्यपाल संजय ग्राम स्थित जनजातीय आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद किया। बैडमिंटन का to know the people's status of living, standard of living at their place itself. By traveling by car all the way, I am able to understand the economical development activity of each and every district. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन क्षेत्र भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने सरायकेला खरसावां जिला के ईटाकुदर गांव जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के मध्य परिसंपत्ति का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चतरा जिले को कई सौगात दी। अपने चतरा दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 3 अरब 78 करोड़ रुपए की 219 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। श्री सोरेन ने यहां पंचायत स्तर दवा दुकान योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंपा जाएगा। इस दौरान स्थानीय विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठकर नहीं बल्कि फील्ड में काम कर रही है। लोगों को लगता है कि सरकार एयर कंडीशन कमरे में काम करती है, लेकिन मौजूदा सरकार की बिल्कुल सोच विगत 20 वर्षों के सरकारों से अलग है। गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, हर परिस्थिति में हम घर के बाहर आम लोगों के चिंताओं पर, उनकी समस्याओं पर लगातार नजर रखते हैं। सिकल सेल अनीमिया दिवस पर खूंटी में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यशाला को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों से इसके विशेषज्ञ जुड़े। खूंटी में जिला प्रशासन और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग सह सिकल सेल अनीमिया दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल के मामले देखने को मिलते हैं। ये वंशानुगत समस्या है और इसे लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब कमजोर होता है, समस्या रहती है, तो अदर इस तरह के प्रॉब्लम्स यानी इन्फेक्शन शरीर में जब निरोधक ताकत घटती है तो कोई ना कोई वायरस अटैक करता है। अटैक नहीं कर पाएगा जितना आज के दिन में करता है। खूंटी के बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय भवन सभागार में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान श्री मुंडा ने कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति को अपने कैरियर की चिंता है, साथ ही सबसे जरूरी स्वास्थ्य है। लेकिन अगर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल न रखें तो जीवन में असंतोष पैदा होता है। हम अपने कैरियर काउंसलिंग के रूप में ही देखें कि हमारी उपलब्धि रोजगार के दृष्टि से हो रही है, होना चाहिए और उसकी पात्रता हम रखते हैं, उसके लिए सक्षम बनाइए। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से हम इस ढंग से
जागरूक हो रहे हैं कि हम अपने स्वस्थ रहें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें और सही समय पर इलाज कराने के लिए हमेशा ध्यान रखें। इस कार्यशाला में तेजस्विनी परियोजना से जुड़ी 1500 से ज्यादा किशोरियां शामिल थीं। श्री मुंडा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सिकल सेल की समस्या हमें बहुत कठिनाई में डालती है। जाने अनजाने में हम इससे अछूते रहते हैं, लेकिन ये हमें इस तरीके से प्रभावित करती है कि हमारे काम करने की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। आपको स्वस्थ रहना आपका अधिकार है। उस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। उसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर आज विशेषज्ञों के साथ चर्चा, जहां यहां पर आप काउंसलिंग के लिए आने वाले दिनों में आप प्रत्येक क्षेत्र में योजनाओं का लाभ कैसे ले, रोजगार के साथ कैसे जुड़े, इसके बारे में यहां पर चर्चा होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर भी ऑनलाइन चर्चा से जुड़े। जिले को सिकल सेल अनीमिया मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने झारखंड थैलेसेमिया फाउंडेशन से एमओयू किया। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनुष्य में रक्त की कमी से संबंधित आनुवांशिक बीमारी सिकल सेल के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 19 जून को सिकल सेल दिवस घोषित किया है। सिकल सेल क्या है और इसका इलाज कैसे हो सकता है, इसके बारे में चिकित्सक डॉक्टर ए.के. ठाकुर ने बताया कि सिकल सेल जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण ब्लड में होने वाला एक एनीमिक रोग है और ये रोग झारखंड के जनजातियों के बीच काफी देखने को मिलता है। किसी सदस्य को सिकल सेल पाया जाता है तो उसके और भी सदस्यों को सिकल सेल के लिए एचपीएल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जांच करना चाहिए और ये संभावना रहती है कि जब उसको सिकल सेल ट्रेट है, मतलब ये एनीमिया सीवियर फॉर्म नहीं है, तो ऐसे लड़के लड़की की जब शादी होती है तो संभावनाएं होती हैं कि भविष्य में उनके जो बच्चे होंगे उसमें सिकल सेल एनीमिया हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश गिरिडीह के दौरे पर हैं। गिरिडीह में 22 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। आज उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को गिरिडीह आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर आज गिरिडीह में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का गिरिडीह का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान को विश्व में सिरमौर बनाने वाली सरकार, राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने वाली सरकार। गिरिडीह में संगठनात्मक समीक्षा बैठक के बाद श्री प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक महत्व का रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने से लेकर राम मंदिर निर्माण का कार्य उनके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। इस प्रदेश में आदिवासी बहुमत के साथ बहलाते खिलाते रचने और रचने का काम करते हैं, उनकी जमीन को छीनने का काम करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रकाश ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता हेमंत सरकार के कुशासन से अब ऊब चुकी है। कमजोर सरकार पिछड़े समाज को पंचायत के चुनाव। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए भाजपा द्वारा लगातार महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 22 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड आएंगे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस मौके पर देवघर जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां दी गईं। इस दौरान कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देशन में पूरे देश में पार्टी का जनाधार बढ़ा है। विशेषकर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में बढ़ा है। कांग्रेस कमेटी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो भी हम लोगों के लिए निर्देश हो उसको हम लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। बोकारो के न्याय सदन सभागार में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा सहित बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश ने जिला अभियंता को चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट के निर्माण के संबंध में जानकारी ली और अविलंब इस दिशा में पहल का निर्देश भी दिया। निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन पर सेना के कब्जे वाली जमीन समेत रांची के अलग अलग इलाकों में विवादित भूमि की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद बिक्री के आरोप पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। छवि रंजन ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। भगवान जगन्नाथ का 15 दिनों के एकांतवास के समाप्त होने पर आज नेत्रदान अनुष्ठान के साथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। इसके साथ ही आम लोगों के दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया गया है। कल ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा का आयोजन होगा। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। जगन्नाथपुर मंदिर के सहायक पुजारी अश्विनी नाथ मिश्रा ने बताया कि जगन्नाथपुर मेला झारखंड का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का एक प्रमुख रथ मेला है। राज्य का सबसे बड़ा ये मेला है। लाखों लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। खूब धूमधाम से लोग इसमें सम्मिलित होकर के भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और उसका लाभ है। मेले में रथ का विशेष महत्व होता है। इस रथ को तैयार करने के लिए पुरी से विशेष कारीगर आए हुए हैं। मुख्य कारीगर ओम प्रसाद ने बताया कि भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा की सवारी के लिए रथ पूरी तरह से तैयार है। बहुत सारे लोगों के समागम से रथ खींचा जाएगा यहाँ से गुंचावर तक और जगन्नाथ जी भैया बलभद्र और मैया सुभद्रा के साथ सवार बन के वो रथ में जाएंगे। इस मेले में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं के साथ हजारों दुकानदार भी आते हैं। प्रबंधन समिति इसके सुचारू आयोजन के लिए जोर शोर से लगी हुई है। वॉलेंटियर हम लोग का रहता है 250 दिन को। हाँ, वॉलेंटियर रन करते रहता है 24 आवर। अनेक प्रकार के अलग अलग चीजें आए हुए हैं, गुलाबी विदेशी आइटम भी कुछ आए हुए हैं। मेले में तरह तरह के खेल तमाशे, झूले और देश भर के लगभग 5000 दुकानदार आए हुए हैं। मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन एवं मेला प्रबंधन समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। मेले में लाखों लोगों की आस्था और संस्कृति का बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध देवघर के श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में आज खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न दुकानों में छापेमारी की गई और मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों से मिलावटी सामान की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। के लिए आज हम सभी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के पदाधिकारी कर्मचारी सभी दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर रहे हैं और जो संदेहास्पद खाद्य पदार्थ है उसका नमूना लेंगे। साथ ही साथ जो प्रतिष्ठान अभी तक लाइसेंस नहीं लिया वे लाइसेंस यथाशीघ्र ले लें या रिन्यूअल नहीं हुआ और रिन्यूअल करा लें और अपने लाइसेंस को प्रदर्शित करें, नहीं तो अगले बार पकड़े जाने पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में आज हाजकोर नक्सली प्रशांत बोस की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशांत बोस से जुड़े अन्य मामलों को एक साथ सूचीबद्ध कर 27 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने प्रशांत बोस की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। देवघर जिले के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर इन दिनों नशाखुरानी गिरोह की सक्रियता से यात्री बेहद परेशान हैं। ताजा मामला संजय हेम्ब्रम के साथ घटी घटना है, जो अपने सहयोगी के साथ तामरन से जसीडीह स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन से उतरने के बाद दोनों स्टेशन के बाहर आराम करने के लिए कुछ देर बैठे। इसी दौरान नशाखुरानी गिरोह के एक सदस्य ने संजय को चाय और बिस्किट दिया, जिसके बाद वे बेसुध हो गए। इसके बाद नशाखुरानी गिरोह उनके मोबाइल और पर्स में रखे पैसों को लेकर चंपत हो गया। इस मामले की छानबीन में जीआरपीएफ जुट गई है। कितना पैसा था? और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने 4 जुलाई को सभी जिलों के अध्यक्षों एवं सचिवों की बैठक बुलाई है। ये बैठक रांची के हरमो स्थित सोहराई भवन में होगी। आजसू पार्टी 22 जून को राज्य भर में संकल्प दिवस मनाएगी। इस दौरान राज्य गठन के उद्देश्य का मूल्यांकन करते हुए राज्य की दिशा और दशा पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आजसू पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी करेंगे। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी की आत्मकथा का विमोचन राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश करेंगे। इंदर सिंह नामधारी ने बताया कि उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ईमानदारी से पुस्तक में रखने का काम किया गया है। धनबाद के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के शिवली बाड़ी रहमत नगर में चोरों ने व्यवसायी मोहम्मद रियाज के घर से 20 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली है। 17 मई की रात 11 बजे चोर खिड़की की ग्रिल तोड़कर घर के अंदर घुसे और अलमीरा में रखे 3 लाख रुपए नगद और जेवरात लेकर फरार हो गए। पलामू पुलिस ने रांची के सेल्स मैनेजर हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। 1 साल बाद हत्याकांड के मुख्य आरोपी छोटू रंगसास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बीते साल 18 जून को रेडमा चौक सब्जी मंडी में रांची के कड्रू के रहने वाले मोटर पार्ट्स कंपनी काफिला के सेल्स मैनेजर अंजनी कुमार सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकुड़ में 18 जून को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कई दिनों से लोग गर्मी की मार झेल रहे थे और तेज धूप के कारण दिन में घर से निकलना मुश्किल हो गया था। श्रावण मास से पहले प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर की दान पेटियों को खोला गया, जिसमें करीब 18,59,514 रुपए मिले। इसमें 1,986 नेपाली रुपए और 12 अमेरिकन डॉलर भी मिले हैं। गिरिडीह के बगोदर में अपराधियों ने ट्रक मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे उसे फोन आया। फोन आते ही वो घर से बाहर निकला, तभी बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने राजकुमार की कनपट्टी पर पिस्टल सटाई और गोली चला दी। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों में बिना जागरूकता के बदलाव लाना संभव नहीं है। ये बातें पूर्व सांसद सह आदिवासी सिंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कही। वे सोमवार को चक्रधरपुर के भारत भवन के समीप रेलवे ओवरब्रिज के नीचे प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। लोहरदगा के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से आयोजित रुआर 2023 कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालय छोड़ चुके छात्रों को एक बार पुनः विद्यालय से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना है। और अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून ने राज्य में प्रवेश कर लिया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि संथाल परगना में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। मानसून की बारिश ने लोगों को लू भरी गर्मी और उमस से राहत दी है। राजधानी रांची में भी आज दोपहर बाद बारिश हुई, जिससे गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.8 और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम 25.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44.8 और न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 19 जून साल 2015 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। संघर्ष संबंधी यौन हिंसा शब्द का अर्थ है किसी भी प्रकार का यौन शोषण, चाहे फिर वह जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भधारण या फिर जबरन गर्भपात ही क्यों न हो। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यौन हिंसा को समाप्त करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन न केवल जागरूकता बढ़ाने के लिए है, बल्कि यौन हिंसा से बचे लोगों का सम्मान करने और उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए है जिन्होंने इन अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और साथ ही अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपनी जान गंवा दी। यौन हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है। क्रिया योग, योग, ध्यान और आध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की गतिविधियों से परिचित हैं। यहीं से श्री श्री परमहंस योगानंद ने योगदा मठ की शुरुआत की थी। मठ के ब्रह्मचारी सौम्यानंद ने बताया कि परमहंस योगानंद जी की विश्व प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी योगी कथा अमृत दुनिया के 50 से ज्यादा भाषाओं में पढ़ी जाने वाली सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक है। गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद द्वारा रचित योगी कथा अमृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक ऐसी आध्यात्मिक किताब है जो कंटिन्यूस बेस्ट सेलर है पिछले 75 साल से। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने इसे 1946 में पहली बार लिखा और ये रिलीज हुई। तब से ये लगातार पूरे विश्व में उनका दूत बनकर फैल रही है। आज ये 15 भारतीय भाषाओं में और 50 से ज़्यादा विश्व की भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और 96% 96% लोग इसे इस किताब को अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। तो इस किताब को इसके चाहने वाले बहुत हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के आईपैड पे सिर्फ एक किताब थी, वो थी ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और उसे वो हर साल एक बार ज़रूर पढ़ते थे। इसके चाहने वालों में विराट कोहली, रविशंकर और ऐसे कई महान हस्तियां हैं जो इसे बार बार पढ़ते हैं या अपने साथ रखते हैं। आशुतोष दास जो एक प्रोफेसर हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस किताब को बोला कि ये किताब इस युग का उपनिषद है। इस किताब के कारण गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद को पश्चिम में योग का पिता, फादर ऑफ योगा कहा जाता है। और गुरुदेव ने इस किताब में भारत की